الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. میری دینی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا نہایت ہی شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ ہدایت عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کی طرف جائیں، یعنی اللہ رب العالمین کی ہدایت کی طرف آئیں اور ایک محفل میں بیٹھ کر کے کچھ باتیں سنیں اور سنائیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی توفیق نہ دی ہوتی تو ہم سیدھی راہ پر نہیں آتے. میری ماں اور بہنوں، جیسا کہ ہم تمام کو معلوم ہے کہ وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. ماہ محرم ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی یہی مہینے سے ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے. اور میری ماں اور بہنوں، آپ کو یہ بات بخوبی طریقے سے معلوم ہے اس مہینے میں ایک بدعت انجام دی جاتی ہے. یہ بدعت ہم اور آپ اس سے اچھی طرح واقف ہے. وہ کس دن منائی جاتی ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے، یعنی میری مراد 10 محرم الحرام کو جو بدعتیں انجام دی جاتی ہے وہ ہے. تو میری ماں اور بہنوں، یہ بدعتیں جڑی ہوئی ہے ایک فرقے سے، اور وہ فرقہ ہے شیعہ فرقہ. یہ شیعہ فرقہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور ایک بہت بڑا فرقہ بھی ہے. آج کے لوگوں کے لیے، خاص طور سے ہم مسلمانوں کے لیے ایک فتنہ بھی ہے. اور یہ فرقہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہی سے شروع ہوا، یعنی انہی کے دور میں لوگوں نے ایک الگ گروہ بنا لیا، ایک الگ جماعت بنا لی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہی میں. لیکن اس کا علم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تھا، وہ اس بات سے واقف ہی نہیں تھے. میری ماں اور بہنوں، تو یہ شیعہ کے عقائد جاننا ہمارے لیے اسی لیے ضروری ہے کیونکہ عقیدہ ہے ہمارا مین اصل ہے، ہماری بنیاد اسی پر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بس دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم اپنا عقیدہ درست کرے، یعنی ایک اللہ کی طرف جٹ ہو جائے، ایک اللہ ہی کی عبادت کرے. اب جب ہم دوسروں کے عقائد جب ہم معلوم کریں گے تو ہمیں ہمارے اور ان کے عقیدے میں فرق ہم محسوس
کر سکیں گے اور فراہم کر سکیں گے اس میں. اسی لیے میں نے شیعہ جو فرقہ ہے جو اس مہینے میں بڑا روپ دیتا ہے اس میں، تو میں اس کے تعلق سے آپ کے سامنے اس موضوع کو لے کر کے حاضر ہوئی ہوں. یعنی شیعہ کے عقائد اور ان کی تردید بہت اہم موضوع ہے آج کے دور میں یہ. تو میری ماں اور بہنوں، چلیے ہم اپنے مواد کی طرف چلتے ہیں. جی، شیعہ فرقہ یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دور سے یہ شروع ہوا، اور نعوذ باللہ من ذالک یہ فرقہ جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا الہ تصور کرتے تھے، اور ان کا ایک بڑا امام تھا جس کا آگے تفصیل آئے گی، وہ ان کو رسول جانتے تھے، رسول سمجھتے تھے ان کو. نعوذ باللہ من ذالک یہ ایسا فرقہ ہے کہ قرآن میں تحریف کے قائل ہے کہیں یہ لوگ، کہیں صحابہ اور خاص کر کے بڑے بڑے صحابہ، ہاں، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے بغاوت کی جاتی ہے ان کے اندر. یہ لوگ بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ اور خلفائے راشدین کے تینوں بڑے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت نفرت کرتے ہیں، یہ لوگ سخت دشمنی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بھی ان کے کچھ عقائد اور آئیں گے آگے انشاءاللہ. بس میں موٹے موٹے طور پر بتا دینا چاہ رہی ہوں ان سے کہ یہ جو فرقہ ہے یہ ایک مسلمان کے لیے اس کی جانکاری ہونا ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے اس کے لیے، مسلمان کے لیے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کی جو بنیاد رکھنے والا ہے، شیعہ فرقے کا جو بنیاد رکھنے والا ہے وہ ہے عبداللہ بن سبا. یہ شیعہ فرقے کی اصل ہے، اسی نے ہی شیعہ فرقے کی بنیاد رکھی ہے. تو عبداللہ بن سبا یہ شیعہ جو آج کے معاشرے کے جو شیعہ حضرات ہیں ان کے پاس یہ معروف اور مشہور شخصیت ہے، اور ایک بہت بڑا امام مانا جاتا ہے ان کے یہاں. یہ نعوذ باللہ من ذالک یہی شخص جو ہے اسی نے سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ تصور کیا اور اپنی نبوت کا دعویٰ کیا. عبداللہ بن سبا، ابو جعفر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سبا اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اللہ ہے. باضابطہ خود یہ کہتا تھا، اس کے الفاظ آتے ہیں کہ انت اللہ و انی نبی، یعنی جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے الہ تصور کیا، الہ مانا اور لوگوں میں یہ بات پھیلا دی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا، اس بات کا علم ہوا، تو انہوں نے اسے بلایا اور اسے پوچھا، اور اس نے اقرار بھی کیا دیکھیے بہنوں، اقرار بھی کیا اس نے، ہاں میں مانتا ہوں آپ کو. کہا اس نے ہاں انت اللہ، آپ اللہ ہے، و انی نبی، اور میں نبی ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. جب امیر المومنین کو یہ بات
खराब लगी, उन्हें तकलीफ हुई इस बात की, तो उन्होंने उसे जला देने का हुक्म दिया। लेकिन मेरी माँ और बहनों, बहुत देर हो चुकी थी, वक्फा बहुत देर हो गया था, टाइम बहुत ज्यादा हो गया था। इसने बड़ी एक जमात बना ली थी शिया की। अब्दुल्ला बिन सबा ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब मालूम हुआ तो बस ये एक खाइल है कहा समझा अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, और नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उन्हें इल्म गैब तो नहीं था, है ना, मालूम होने के लिए। तो बस ये एक ही फर्द है जो खाइल है मेरी इलाह होने का और अपने आप को नबी मानने का, हालांकि नबियों का सिलसिला खत्म हो चुका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी कड़ी खत्म हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुवत का सिलसिला खत्म कर दिया। अल्लाह ताला ने आपको खातिमुन नबीयीन कह दिया। फिर ये जो शख्स है आकर के अपने आप को नबी का दावा करता है और नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह का तसव्वुर करता है, तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये बात बहुत गिरान गुजरी और आपने उसको जला देने का हुक्म दिया। तो बहरहाल उसे जला दिया गया, लेकिन वो एक ही शख्स समझा था अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, लेकिन बहुत बड़ी एक जमात वहां उठ खड़ी हुई थी, बहुत बड़ी एक जमात उसने बना ली थी, वही से इसका तसव्वुर हुआ ये फिरके का। और अब्दुल्ला बिन सबा ये एक यहूदी शख्स था, ये एक यहूदी था असल में। इसकी असल देखी गई ना तो कहा जाता है, मालूम होता है कि ये असल में एक यहूदी था जो अपने अंदर जो दुश्मनी थी, भड़ास थी, वो निकालना चाहता था और मुसलमानों के अंदर एक अलग कौम बनाना चाहता था, जो कि बन गई। और उसने बज़ाहिर इस्लाम कबूल किया था, मतलब बस एक दिखावे के तौर पर, और इसे मुनाफिक भी हम कह सकते हैं, जैसा कि है ना, मुनाफिक भी यही किरदार के लोग होते हैं ना, मुनाफिक भी हम इसे कह सकते हैं। उसने बज़ाहिर इस्लाम कबूल किया था बस दिखावे के तौर पर, असल तो ये यहूदी था और बड़े बड़े सहाबा पर तान यानी उनको बुरा भला कहता था, उन्हें बुरा भला कहता था, और इसी तरीके से लोगों के अंदर, लोगों के दिलों में उनके लिए दुश्मनी डाला करता था। उसी से ये वालिद हुए हैं, उसी से ये लोग आए हैं शिया हजरत। और देखिए अब इन लोगों की जो हकीकत है, अहले बैत से ये लोग जोड़ते हैं किसको, अपने आप को, यानी अहले बैत से मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के लोग, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। तो ये लोग अपने आप को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से जोड़ते हैं, अहले बैत से। अहले बैत उन्हीं को कहा जाता है। तो ये लोग जोड़ते हैं अपने आप की निस्बत। अब चुनांचे शिया जो मजहब है, ये जो मजहब के लोग हैं अपने आप की निस्बत अहले बैत से इसीलिए जोड़ते हैं क्योंकि वो उनको अपने आप यानी अहले बैत को वो लाले समझे जाते वो, इसीलिए। लेकिन हकीकत कुछ और ही है बहनों।
और ये लोग समझते हैं कि आम जो मुसलमान है यानी हम जो मुसलमान हैं वो मुसलमान हम ज्यादा मुसलमानों से अहले बैत से ज्यादा दिली मोहब्बत रखते हैं। हाँ, ये लोग समझते हैं कि मुसलमानों से ज्यादा हम अल्लाह के रसूल के घराने के लोगों से मोहब्बत रखते, बल्कि ये लोग समझते हैं कि नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हम ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हम मुसलमान जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो मगर ये लोग क्या करते हैं, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना सब कुछ मानते हैं। जैसी मोहब्बत हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं, वैसी मोहब्बत ये लोग अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को करते हैं। मानते हैं लोग रसूल अल्लाह के नबी को, लेकिन वो भी एक आर के तौर पर समझते हैं ये लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी। और इतनी नाउज़ुबिल्लाह इनके अंदर इतनी घटिया बात मानी जाती है। देखिए ये लोग कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह ताला के सबसे महबूब फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम से गलती हो गई और उन्होंने बजाय अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनाने के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना दिए। वो लोग ये दावा रखते हैं, वो लोग ये समझते हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह ताला के महबूब फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, उन्होंने खता की, जबकि फरिश्ते मासूम अनिल खता है, यानी गलतियों से वो पाक है। तो वो लोग ये तसव्वुर करते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, उन्होंने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रसूल बनाने के बजाय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना दिया। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये लोग जो है बस दिखावे के तौर पर अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं, दिखावे के तौर पर। वो कैसे? वो भी इसीलिए कि असल तो ये लोग जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो दुश्मनी रखते ही हैं, और साथ ही साथ अहले बैत से भी, अहले बैत के भी खिलाफ जाने वाले लोग हैं ये लोग। हाँ, जो आप लोग को तारीख थोड़ी सी मालूम होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो लोग जो गम मनाते हैं, शहादत का जो गम मनाते हैं, वो किस वजह से मनाते हैं? क्योंकि ये लोग खुद हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहादत के वजह है, शहादत की इन्होंने वजह बनी है, इसीलिए ये लोग गम मनाते हैं। उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती है। बस ये लोग कहते हैं कि हाँ, हमारे हुसैन, हाँ, हमारे बड़े इमाम हुसैन के शहादत में हम गम मनाते हैं। ये लोग खुद ही इसके वजह है, ये लोग खुद ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की वजह बने, इन लोगों ने ही। शिया जो लोग थे पहले के, उनके लोग ही अहले कुफा को बुलाए थे ना, वही लोगों, उन्हीं लोगों ने हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया था, अहले कुफा ने बुलाया था ना। तो अहले कुफा उसमें शिया के ही लोग हैं, शिया हजरात ही वहां पर ज्यादा थे। और शिया उनके दिमाग में ये बात घुस गई है, ये बात चली गई है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, या मर्द हो या औरत हो, सब लोग यही समझते हो लोग कि
नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत की वजह है। उन्होंने ही हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किया है। नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक। असल वजह तो यही लोग है, असल जो शहादत हुई है इन्हीं लोगों ने की है। ऐसा कत्ल किए हैं, ऐसी शहादत दी है उन्हें कि मैदान जंग में, हाँ मैदान करबला में उन्हें पानी तक नहीं नसीब हुआ। बड़ी जालिमाना शहादत दी है उन्होंने, ऐसा रवैया इख्तियार किया उन्होंने। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही के बैअत करने पर वो लोग आमदा किए, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलवाए धोखे से और बुलवा करके उन्हें शहीद कर दिया। खुद हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके लिए बदुआ की कि ऐ अल्लाह, अगर तू उनको कुछ वक्त तक जिंदगी दी तो उन्हें फिरकों में बांट देना और उनको मुख्तलिफ टुकड़ियों में तकसीम कर देना। मुख्तलिफ टुकड़ियों में यानी मतलब मुख्तलिफ लोगों के गुरोह में अलग अलग बांट देना उनको, वही मतलब वही मुराद है। और उनके हुक्मरानों को उनसे राजी ना रखना। ये हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बदुआ ही की वजह से आज शिया फिरके के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं कह रही हूँ, सिर्फ एक शिया फिरके के अंदर 30 से जायद फिरके हैं, 30 से जायद और फिरके हैं, बस ये एक शिया के अंदर ही। किस लिए? कि उन्होंने बदुआ की उनके लिए, इसीलिए वो लोग फूट पड़ गई उनके अंदर। वो लोग खुद एक फिरका है और उसी फिरके के अंदर फिर से 30 फिरके या 30 से जायद फिरके माने जाते हैं। और एक बात याद रखिए, अगर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन दोनों के दरमियान जंग अगर होती तो मुसलमानों का इतना बड़ा गिरोह शहीद कर दिया जाता, मुसलमानों का इतनी बड़ी तादाद शहीद कर दी जाती कि हम बता नहीं सकते। समुंदर के पानी पूरा का पूरा खून से लाल हो जाता। उतने बड़े सहाबा, उतने बड़े लोग, यानी उतने ज्यादा लोग, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा गिरोह शहीद कर दिया जाता। अगर मुसलमानों में दोनों भी मुसलमान थे, देखिए हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी काफिला मुसलमान थे और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी काफिले वाले मुसलमान थे। अगर इन दोनों में अगर जंग होती तो मुसलमानों का बहुत बड़ा फिरका, बहुत ज्यादा कसीर तादाद में मुसलमानों की जंग हो जाती थी। तो बस कहने का मकसद यही है मेरा कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये जैसे बड़े बड़े ये लोग जोड़ते हैं अपनी निस्बत, और मुसलमानों को और खास तौर से बड़े बड़े सहाबा को, जैसा कि उमर और अबू बकर और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमाइन, और खास तौर से मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है कि ये लोग बहुत बुरा अमल कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली ना दो। फिर भी ये लोग हर 10 मुहर्रम के दिन सहाबा को गालियां देते हैं, बड़े बड़े सहाबा अबू बकर, उमर, उस्मान और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो वालिद थे उनको, बहुत सारे सहाबा को ये लोग गालियां देते हैं, महज ये इस वजह से, बल्कि ये लोग खुद ही इसके वजह बने हैं। बस मेरा कहने का मकसद यही है कि ये हकीकत इनकी बयान करना था आपके सामने, आप लोगों के सामने,
जो हकीकत, ये लोग झूठी हकीकत जो बयान करते हैं कि हम उनके चाहने वाले हैं, हम उनकी मोहब्बत करने वाले हैं, ये सब ये समझते हैं। तो नौज बिल्ला मिन जालिक, ये इनकी झूठी मोहब्बत है, झूठी मोहब्बत है इनकी, ये सच्ची मोहब्बत नहीं होती है। असल ये लोग ही वजह है हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के तो क्या, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के पीछे भी इन्हीं का हाथ है। आप लोग तारीख के औराक को छाने, तारीख पलटा कर देखे, तारीख के औराक को, तारीख के वर्खों को, तारीख जरा पढ़ कर देखिए आप लोग, तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के पीछे भी यही लोग मिलेंगे। लेकिन तारीख, सही तारीख के पीछे आपको जाना रहेगा। ये बहुत जगह गलत अकायद और गलत किताबें भी पाई जाती है, हमें सही तारीख की किताबों में देखना पड़ेगा। तो खैर, बहरहाल मेरा उन्वान कहीं कुछ और है, तो मैं अपने उन्वान पर चलती हूँ। शिया के जो अकायद है, सबसे पहला अकीदा उनका ये है कि वो लोग मुता को बहुत ज्यादा मानते हैं। अब ये मुता क्या है, ये लोग जो है औरत के बारे में कुछ एक गलत अकीदा रखते हैं, औरत को बहुत बुरा जानते हैं ये लोग, जबकि हमारा इस्लाम औरत को कहीं माँ के दर्जे में जन्नत का दरवाजा या कदमों तले जन्नत कहा, या फिर बहन या बेटी, या इसी तरीके से बहन और बेटी के तौर पे जन्नत में ले जाने वाला जरिया कहा। और इसी तरीके से अगर नेक बीवी, सालेह बीवी है, तो दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान कहा हमारा इस्लाम ने। लेकिन ये लोग औरत को बहुत ही बुरा जानते हैं, बहुत ही बुरा समझते हैं, और बहुत ही बुरा तरीके से फायदा उठाते हैं। बहुत ज्यादा औरत के बारे में हकीर अकायद है इनके ताल्लुक से। मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बयान करूंगी आप लोगों के लिए। बहुत ज्यादा हकीर जानते हैं ये लोग औरत को, जबकि हमारा इस्लाम औरत को बहुत बड़ा बुलंद दर्जा देता है। और इसी तरीके से खुमुस, और एक अकीदा है खुमुस, यानी आमदनी का जो 5वां हिस्सा निकालना होता है गरीब और मिस्किनों और यतीमों के लिए, वो इसको निकालने से आजाद है। ये लोग अपने समझते हैं कि जो आमदनी का जो 5वां हिस्सा है, ये हमारे अपने ही लिए है, किसी और गरीब के लिए नहीं है, किसी और यतीम के लिए नहीं है, बस हमारे लिए ही ये निकालने के लिए कहा गया है। हम ही इसके असल माल वाले हैं। हाँ, हम ही इसको अपने ऊपर खर्च करेंगे। और इनके यहाँ कहा जाता है कि मतलब जो भी आमदनी का 5वां हिस्सा जो भी होता है, वो किसी और के लिए निकालना फर्ज नहीं है, जायज ही है, सिर्फ जायज है। और जो भी गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए निकालेगा अपनी आमदनी का 5वां हिस्सा, वो गुनाहगार ठहराएगा, गुनाहगार होगा। ऐसे ऐसे अकायद उनके पाए जाते हैं। देखिए, जबकि अल्लाह ताला ने कहा कि अपनी आमदनी का जो 5वां हिस्सा है, वलीजिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन, हाँ, जो आमदनी का 5वां हिस्सा है वो खराबतदारों, यतीमों और मिस्किनों के लिए है।
اور دیکھیے ان کا جو اور ایک عقیدہ ہے وہ ہے جمعہ کی نماز کے سلسلے میں یہ لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے سے عارض ہے، یعنی جمعہ کی نماز یہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، اگر پڑھے بھی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام معصوم ہی کے پیچھے پڑھنا ہے۔ امام معصوم کون ہے؟ کوئی بھی امام معصوم نہیں ہوتا ہے، کوئی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم خطا کار ہے، تو اب امام معصوم کہاں سے لائیں گے؟ امام معصوم کے پیچھے ہی نماز پڑھنا ہے، جمعہ کی اگر پڑھے، نہیں تو پھر نماز ہی نہیں پڑھنا ہے۔ یہ لوگ کئیو جمعہ کی نماز یہ بس اسی خیال میں چھوڑ دیتے ہیں کہ امام معصوم ہم کو نہیں دستیاب ہوئے ہیں، ہاں امام معصوم ہمارے لیے نہیں ملے ہیں، اسی لیے بس ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز جمعہ کی نماز ہی یہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن تم کو پکارا جائے، ندا دی جائے، آواز دی جائے تو تم اپنی بیع و شرع جو ہے، ہاں خرید و فروخت، اس کو تم چھوڑ دو، اس کو تم چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف تم لوٹو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ قرآن میں کہہ دیا ہے، تو یہ لوگ نماز ہی کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ہی کاروبار، اپنے ہی خرید و فروخت میں لگے رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بس ایک جھوٹا دروازہ سمجھ لیجئے، اس کے پیچھے سمجھتے ہیں کہ ہاں ایک امام معصوم چاہیے ہمیں، وہ اگر ملے گا تو ہم کریں گے ورنہ نہیں پڑھیں گے، ہے نا؟ اور اسی طریقے سے دیکھیے ان کی آسمانی کتابیں جو ہیں وہ بھی مختلف ہے، وہ بھی کئی زیادہ ہے، آسمانی کتابیں، ہماری آسمانی کتاب صرف ایک ہی ہے اور ان کی آسمانی کتابیں کئی پائے جاتے ہیں، اور میں تو سنی ہوں کہ ان کے مساجد بھی ہوا کرتے ہیں، ان کی مساجد ہی الگ ہوتی ہے، ان کے امام بھی ان کے کچھ 12 سے زائد امام بتائے جاتے ہیں، ان کے 12 سے زائد امام ہیں ان کے، اور ابھی جو ہے 12واں جو امام ہے وہ قیامت ہی کے قریب آئے گا، وہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہاں قیامت کے قریب 12واں امام آئے گا وہ کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو آسمانی کتابوں میں جو ہے یہ لوگ کیا جانتے ہیں، دیکھیے آسمانی کتابوں کے تعلق سے کہ عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید بلا تحریف ہے، یعنی کوئی بھی اس میں چینجز نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس میں کوئی ایک غلطی بھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے خود اس کی ذمہ داری کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہاں ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذرا اذان کے بعد میں اپنا بیان جاری رکھوں گی انشاءاللہ۔ تو یہ جو قرآن ہے ہمارے پاس مصحف عثمانی، ہاں یا اسی طریقے سے جو آج کل جو ہمارے پاس قرآن ہوتی ہے وہ سب، یہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اس قرآن کے تعلق سے کہ اس میں تبدیلی کی گئی، نعوذ باللہ من ذالک، وہ جو دشمنی ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے وہ رکھتے ہیں، وہ محض اسی لیے رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا تھا اس کے 40 پارے تھے اور 10 پارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں تھے،
اسی لیے یہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 10 پارے آنے والے قیامت کے قریب ہمارا جو 12واں امام آئے گا وہ ہمارے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں یہ 10 پارے لے کر آئے گا، اور یہ کہتے ہیں یہ گمان رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ قرآن جو لوح محفوظ سے اتارا گیا، اللہ رب العالمین نے قرآن کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا، تو یہ لوگ جو گمان رکھتے ہیں کہ اس میں تبدیلی کی گئی، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں لوگ کہ 10 پارے جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں بیان کیے گئے تھے، اس کو ان بڑے بڑے صحابہ نے چھپا دیا اسے، تو ہمارا 12واں امام جو ہے اس کو یہ لے کر آئے گا، نہ جانے اور کیا کیا باتیں وہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے خود ہمارے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو وہ یہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العالمین پر بھی یہ انگلی اٹھا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ دیکھا جائے تو بات بہت بڑی ہو گئی، یہ لوگ بس اللہ کے رسول یہ لوگ بس اللہ تعالیٰ ہی پر نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، بڑے بڑے صحابہ پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ جو 10 پارے کی جو بیان کرتے ہیں یہ لوگ حدیث، یہ وہ کہتے ہیں کہ 10 پارے ہمارا 12واں امام لے کر آئے گا، تو نعوذ باللہ من ذالک سب لوگوں سے خیانت ہوئی، یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے خیانت ہوئی، نعوذ باللہ۔ جبرائیل علیہ السلام سے خیانت ہوئی، اللہ کے رسول سے خیانت ہوئی۔ یہ بات دیکھیے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، اتنی بڑی بات وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اگر سمندر کا پانی، اس کے یہ بات سے سمندر کا پانی بھی کڑوا ہو جائے، اتنی بڑی بات وہ لوگ کہتے ہیں۔ بس ایک وہم اور گمان سے یہ لوگ صحابہ سے دشمنی رکھتے ہیں، صرف صحابہ سے بھی نہیں بلکہ اللہ کے رسول سے، اور ہم مسلمانوں سے بھی ان کے تعلقات صحیح نہیں رہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے تعلق سے بھی ان کے یہاں عقیدہ یہی ہے کہ مسلمان لوگ بہت زیادہ نجس ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انما المشرکون نجس، بے شک مشرکین نجس ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک ہم مسلمانوں کو یہ لوگ نجس کہہ رہے ہیں۔ تو ان کی اور آسمانی کتابوں کے تعلق سے آتا ہے کہ الجامعہ یہ کتاب ہے ان کے پاس۔ جی سسٹرز، آپ کی آواز نہیں آ رہی سسٹر۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی اب آ رہی ہے۔ جی، تو یہ لوگ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے اس کا املا کیا، یعنی منہ سے پڑھا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رائٹ ہینڈ سے اس کو لکھا، رائٹ ہینڈ سے اسے لکھا، اور نہ جانے کیا بات کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے حلال اور حرام اس میں وارد ہے، اور من گھڑت حلال اور حرام ہے، دیکھیے ان کے، جیسا کہ آپ سمجھ سکتی ہیں جمعہ کے بارے میں، خمس آمدنی کا 5ویں حصے کے بارے میں، اور بہت سارے عقائد ایسے ہی ہیں ان کے، غلط سلط، ہمارے یہاں کے حلال اور حرام اس میں ہے،
हाँ, और मन घड़त बातें उसमें हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह से इमला किया, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा का सारा कुरान आप मुंह से ही पढ़ते थे। इसका क्या मतलब हुआ देखिए, बहस मतलब कुछ भी बातें ये लोग कहते हैं। और एक किताब है उनके यहाँ, सहीफतुन नामूस। ये सहीफतुन नामूस बड़ी दिलचस्प किताब है। देखिए, जब मुझे इसके बारे में मालूम हुआ तो बहुत हंसी आई मुझे इस पे। उनके यहाँ ये किताब ऐसी है देखिए कि ये किताब जो है शिया के जो फिरका है, शिया वालों का फिरका, उनके पैदा किए गए जब से तो आखिरी कयामत तक के आने वाले फिरका, शिया फिरके के लोगों के नाम इसमें वारिद हैं। तो क्या नौज बिल्ला मिन जालिक आदम अलैहिस्सलाम के जब से थे ये शिया फिरके की लोगों के नाम, है ना? बड़ी दिलचस्प बात। और इसी तरीके से कयामत तक आने वाले, अब कयामत तक कौन आएंगे, कितने लोग आएंगे, क्या क्या नाम होंगे, वो सारे के सारे दलाइल उसमें है बोलकर वो लोग बयान करते हैं। और तो और ये तो जाने दीजिए, एक बात वो लोग से निकल गई, वो तो छोड़िए, उसके बाद भी ये लोग वारिद करते हैं, ये लोग उसके बाद भी वो लोग कहते हैं कि शिया के जो दुश्मन हैं आने वाले कयामत तक जो जो दुश्मन होंगे वो भी इसमें वारिद होंगे, उनके नाम, शिया वालों के नाम। तो आप लोग जरा सोचिए कैसी लामहाल बात कह रहे थे। देखिए ये लोग, एक बहन ने सवाल किया, देखिए अच्छा सवाल है, क्या शिया को सलाम कर सकते हैं? तो इनके ताल्लुक से आता है कि मतलब जैसा यहूदी लोग जैसा करते हैं, सलाम वालेकुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करते थे वो लोग। हाँ, अगर वो लोग सलाम करें भी अगर, तो वालेकुम बोल देना है सिर्फ, ये बयान नहीं करना है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहीं, इतना पूरा उनके लिए नहीं करना। अल्लाह की रहमतें बरकतें नहीं, वो अल्लाह ताला जाने, वो लोग जाने। बस अगर वो लोग सलाम हमको करते हैं, अस्सलाम वालेकुम वो लोग कहते हैं, तो बस वालेकुम हमें कह देना है। और एक किताब है देखिए, सहीफतुल अब यानी ये किताब के बारे में वो लोग कहते हैं कि अल्लाह के अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ से लिखी हुई किताब है ये। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद हाथ से लिखा है इसको। और एक किताब है उनके पास, सहीफतुल ज़ाउबतुस सैफ, यानी तलवार पर ये किताब लिखी गई। तो देखिए आप लोग ख्याल करिए कि तलवार पर क्या क्या लिखी जा सकती है, ये तलवार पर कितनी बातें लिखी जा सकती है, बस तलवार पर ये किताब लिखी गई। और सहीफे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है इसमें। और इसी तरीके से मुसहफ़े फातिमा उनके पास है, जैसे हमारे पास मुसहफ़े उस्मानी है, वो लोग वारिद करते हैं मुसहफ़े फातिमी। हाँ, और इसी तरीके से हाथ तो यहाँ तक हो गई कि उनके यहाँ तौरेत, जब इंजील और जबूर भी पाया जाता है। अब ये तौरेत जब जबूर इंजील क्या, अब हमारे पास तो तौरात है, इंजील है और जबूर है। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर और जबूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, नाजिल की तो की गई ना, बस अबरानी जबान में, हाँ उनकी जबान में, अबरानी जबान में उसे बस ये लोग लिखे हैं और कुछ गलत अकायद भी उसमें तहरीफ कर दिए हैं उसमें ये लोग, और उसी को तौरेत नाम देते हैं। इंजील को भी इंजील कहते हैं और जबूर को भी जबूर कहते हैं। और हमारे कुरान के ताल्लुक से तो ये लोग बहुत गलत कहते हैं कि ये तहरीफ शुदा है,
नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अलगर्ज, ऐसे मौके पर ये उन्वान का इंतखाब महज इसीलिए किया गया कि उनके अकायद और उनकी हकीकत लोगों के सामने बयान हो। हाँ, जो लोग इससे गाफिल है और जो नादान है मुसलमान, उनके साथ मिलकर के जो बिदातें अंजाम देते हैं, उनसे मुसलमानों को हमारे आगाह करे, है ना। अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक दे और शिया हजरात को हिदायत दे। उनके अकायद और हमारे अकायद तो बहुत अलग है। देखिए, वो अपने मफाद के बहुत सारे अकायद अपने फिरके में डाल लिए हैं। बस ये एक हमारे लिए एक फितना है, इसके सिवा हमारे लिए कुछ नहीं है। हम मुसलमानों को इससे बचे रहना चाहिए। ये फिरका हमारे लिए एक फितने का बाइस है। देखिए, फितना इसमें है हमारे लिए। हम मुसलमानों को इससे समझना चाहिए जो बिदाते। और ये मैं तो समझती हूँ कि मेरे इल्म में जहां तक है कि ये लोग उस दिन यानी 10 मुहर्रम के दिन अपने छोटे पैदा होने वाले उस दिन जो पैदा हुआ बच्चा, उस बच्चे को भी ये लोग एक कट मारते हैं। उस बच्चे को भी ये लोग कट मारते हैं, यानी उस दिन उनके यहाँ कोई बिना कट मारा हुआ यानी बिना जख्मी हुआ नहीं रहना है उनके यहाँ। तो बस इतना ही है। उनके अकायद बहुत डिफरेंट है हमसे। मेरे वक्त के हिसाब से मैंने आपके सामने मौजू को रखा। जो मेन अकायद है उनके, उसको बयान किया आप लोगों के सामने। उनके 12 इमाम भी पाए जाते हैं और 12 में से 11 आ गए उनके और एक आने वाला है बोलकर वो वारिद करते हैं। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को नेक रास्ते पर, सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, और गलत अकायद और गलत फिरके लोगों से हमें महफूज फरमा, और हर वो बिदात जो हमारे समाज में की जाती है उसे हमसे महफूज फरमा, उसे हमसे दूर फरमा और हमें उसे बचाए रखना मौला। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्लि शर्रिन व फितन व मिन कुल्लि बिदअह। ऐ अल्लाह, हम तमाम लोगों को हर फितना, हर फिरका और हर बिदात से हमें महफूज फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।